Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. In radio network from East Coast to West Coast. And here on East Coast, we are live on 5:40 a.m. New York, New Jersey, and Connecticut. 5:40 a.m. That's exactly what you heard. Live on 5:40 a.m., 13:10 a.m. That's up in Parsippany, Morris County, and then 96.7 FM in Edison, Middlesex County. That's a Radio Zindagi for you 24/7, streaming live on radiozindagi.com and Radio Zindagi app for iOS and Android. I am Sanjeev, coming live to you from Radio Zindagi studio in Edison, New Jersey. Our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State. And now, getting ready for the Divine Vastu Talk with Dr. Rewa Kumar, a Vastu Shastra expert and consultant who joins us every Thursday at 3:30 p.m. right here on Radio Zindagi. Jai Mata Di, Namaskar Didi, welcome to the show. कैसे हो आप? जय माता दी संजीव, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. जी बिल्कुल, thank you. Hope everything is okay with you and listeners during this show, which obviously you're listening live on Radio Zindagi frequencies and watch it live on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. Any question you have, you can call studio number 732-662-4701. Any Vastu related questions that you like to ask Revaji, and on a Facebook, you can also post it on our Facebook page, and then Revaji will definitely answer the question. She can be reached for private consultation, yes, on over the phone, in person, maybe, otherwise definitely on the Zoom is all possible. But you can give her a call at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. डिवाइन वास्तु, जो वास्तु की हम बात करते हैं रिवा जी, एवरी वीक आप हमें वास्तु के बारे में समझ देते हो, इतनी सजेशन देते हो, राइट, बट फिर भी एक जो भी कुछ होता रहता है जिंदगी में, कभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ अपने देश में होता रहता है या कहीं ना कहीं पे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत डगमगा जाता है and then you feel less energy. So how to get power and a confidence in one's life? कि आपको power and confidence and full of energy कैसे रहना है through Vastu principles and through Vastu suggestions? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि if there is a way that someone can say stay confident in spite of ups and downs and जो भी कुछ होता रहता है, but more you stay positive and confident, it's better for you. तो वास्तु के जरिए कुछ ऐसी टिप मिल सकती है आपसे? ऑफ कोर्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी व्यूअर्स, लिसनर्स, कि 5 एलिमेंट्स दे ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. चाहे वो हमारी पर्सनल बॉडी फिटनेस में ले लीजिए, इमोशंस को लेके चलिए, या अगर आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, उसी जगह से, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर ही सारा यूनिवर्सल आज चलता है और सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. जब यहाँ पे इम्बैलेंसमेंट होती है तो उसके इफेक्ट हमारे पे आते ही आते हैं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती ही आती हैं. रहा नेक्स्ट पावर का, कॉन्फिडेंस का. आज के वक्त में क्या, अगर आप पूरा हिस्ट्री भी पढ़े, थाउजेंड ईयर, तब भी हर किसी को पावर की जरूरत होती थी, क्योंकि पावर होने से स्ट्रेंथ मिलती है, ये सही है. अब कई पावर को मिसयूज कर लेते हैं, कई उसी पावर के साथ अपनी लाइफ में ग्रो भी रहते हैं. क्वेश्चन तब आता है संजीव जी, जबकि आपके हाथ में पावर है, लेकिन
आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उस पावर को आप उसका सही यूज नहीं कर रहे। जब आपके पास में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो नेचुरली आप डिसीजन सही नहीं लेंगे। जब डिसीजन सही नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स भी उसके सही नहीं आएंगे। तो उस पावर का क्या हो जाता है कि आप उस पावर का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। क्या रीजन है? बिल्कुल सही है। अगर हमारी ड्वेलिंग में, हमारे घर पे या हमारे काम पे, वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे, कहीं पे भी अगर वास्तु डिफेक्ट होगा तो आपके कॉन्फिडेंस की कमी, पावर में कमी आती ही आती है। शुरुआत करेंगे घर से, क्योंकि घर में भी आप एटलीस्ट 24 आवर में से 16 आवर्स आप अपने घर के ऊपर में टाइम बिताते ही बिताते हैं। आप कहेंगे हम तो सो जाते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एंड। अगर आप सो जाते हैं, उस सोने में भी आपको कितनी अच्छी नींद आती है। उस सोने में भी अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं तो क्या आप उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं? हर चीज डिपेंड करती है आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर में। काम की जगह के ऊपर में भी आप अच्छी पोस्ट में हैं, आपके पास पावर है, लेकिन आप उस पावर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपने बॉस की सपोर्ट नहीं है या आपके सबॉर्डिनेट्स की नहीं है, या अगर आप पावर यूज कर रहे हैं तो उसका ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा, वो नेगेटिविटी में जा रही है। तो पावर को करने के लिए जो आपको स्ट्रेंथ देती है, उसके लिए बहुत जरूरी है उस पावर के लिए इनहांस करने की एनर्जी। अगर आपका घर का साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा, साउथ वेस्ट एलिवेटेड होना चाहिए, साउथ वेस्ट आपका नीचा नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं जाना चाहिए, साउथ वेस्ट का कोई कॉर्नर मिसिंग नहीं होना चाहिए या एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको एलिवेटेड करना है, मतलब की हाइट होनी है। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक एनर्जी ट्रेवल करती है, वो साउथ वेस्ट में आगे डिस्पर्स करती है। और अगर हमारा साउथ वेस्ट डाउन होगा, साउथ वेस्ट बहुत खुला होगा, साउथ वेस्ट में कहीं पे पानी से, वाटर से जुड़ी कोई एनर्जी होगी, तो आप पावर को कहीं पे भी नहीं ले पाएंगे। पावर नहीं मिलेगी, बेवजह का आपको एक फियर, एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो पावर के लिए साउथ वेस्ट को इनहेंस करना बहुत जरूरी है। उसको इनहेंस करने के लिए अगर आप देखते हैं कि साउथ वेस्ट आपका डाउन है, तो आप एटलीस्ट पूरा साउथ वेस्ट का कॉर्नर ना भी इनहेंस कर पाए, लेकिन आप पर्टिकुलर साउथ वेस्ट की जो 220 से 240 डिग्री का कॉर्नर आपका आता है आपकी पूरी प्रॉपर्टी का, जिसका आप मेजरमेंट अपने बैकयार्ड से लेके आपके गैराज को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। आप जब आपका, तब आपको पता चलेगा कि आपके घर का साउथ वेस्ट कहाँ है। उस साउथ वेस्ट को एलिवेट, उस कॉर्नर को एलिवेट करना बहुत जरूरत है पावर के लिए। और वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपका वहां पे देखते हैं कि कोई हैवी चीज नहीं है, तो एटलीस्ट आप वहां पर कोई भी हैवी रॉक्स लगा सकते हैं, भारी, जो काफी भारी हो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को स्टेबल करना है, आपको पावर देनी है, आपको ताकत देनी है, आपको लाइफ में ग्रो करने की हिम्मत देनी है। तो आपका पर्टिकुलर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है आपकी प्रॉपर्टी का, आपको उसको खूब, उसको वहां पे एक येलो कलर पेंटेड वुडन कोई भारी सा बॉक्स रख दीजिए और उसके अंदर में ढेर सारी रॉक्स या ढेर सारी पत्थर डाल दीजिए ताकि वो हैवी रहे, पर उसके ऊपर में येलो पेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप बॉक्स नहीं रख सकते, तो आप वहां पर छोटा सा लैंडस्केपिंग कर सकते हैं विदाउट वाटर, कि एक छोटी सी हिल बना दीजिए, लेकिन हिल जो बनाएंगे उसका जो ऊपर का पोर्शन, टॉप आएगा हिल का, उसमें कर्व देंगे ना कि पॉइंट देंगे, ताकि आप उस जगह पे खड़े हो सकें, उस पावर का आप सही यूज ले सकें। अगर आप सोचते हैं कि आपका बैकयार्ड नहीं है या आप छोटा सा घर है जहां पे आपको बिल्कुल सिर्फ बैल्कनी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहां आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, चाहे वो आपका फैमिली रूम आ रहा है, लेकिन एक बेडरूम को छोड़कर फैमिली रूम है, या आपको ये कह सकते हैं कि वर्क प्लेस है, कुछ भी है, वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप कोई भी मिट्टी के, वुड के या सेरामिक, आप क्ले के कोई भी गणपति जी रख सकते हैं। उन गणपति जी को अगर येलो कलर के गणपति जी रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगे, ताकि गणपति जी आपको एक, उनका जो इमेज है, जो उनकी लुक है, वो हैवीनेस के ऊपर है, वो स्टेबिलिटी के ऊपर में है। साउथ वेस्ट इज अ मेन डायरेक्शन टू गेट पावर इन योर हैंड्स। यहां तक कि अगर आपको साउथ वेस्ट में अगर आपका लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, या साउथ वेस्ट में अगर आप सोचते हैं कि कोई
ओपन जगह है तो वहां पर भी आप क्रिस्टल का शैंडियर हैंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का शैंडियर जो हैंग करते हैं वो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर रखता है। जहां जहां साउथ वेस्ट अगर खुला होगा, साउथ वेस्ट लोअर होगा, एक्सटेंडेड होगा या मिसिंग होगा, वहां पर पावर की कमी होगी। ये पावर मैं कह रही हूं जो को आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये पावर उनसे रिलेटेड नहीं है कि हस्बैंड को अपनी अलग पावर चाहिए या वाइफ को अपनी अलग पावर चाहिए, उसमें आप ये लेके मत जाइएगा कि नहीं तो उसमें झगड़ा ना हो जाए। मैं कोई ऐसी पावर नहीं दे रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीक जरूर एक अच्छा शो करेंगे रिलेशंस को लेके। लेकिन पावर टू ग्रो इन योर सेल्फ, to get strength in yourself, to get positive decision in your life, to enhance that positive energy, you have to focus on the southwest corner of your property. So it has to be more elevated, it has to be in yellow color. अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए संजीव क्या है कि आपके अंदर सब कुछ है, आप बहुत सब जानते हैं, लेकिन भी कभी इंटरव्यू के टाइम पे या कभी हम किसी के सामने बैठे हैं या कुछ है उसका हम सही जवाब नहीं दे पाते। खास तौर पर मैं बच्चों के लिए बहुत देखती हूँ कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने जो टैलेंट्स है उनके अंदर ही रह जाते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम तभी पाई जाती है अगर जहां पर साउथ वेस्ट बहुत डार्क एरिया होगा या आपके घर में बहुत ज्यादा बीम्स होंगी। बीम्स के अंदर आप बैठेंगे, बीम्स के नीचे बैठ के अगर आप कभी भी काम करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आप कह के भी किसी को अपनी बात नहीं कह सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि कभी आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से बात करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है एंड आई वांट दिस, लेकिन वो आप नहीं कह पा रहे, आप उस चीज को अपने अंदर ही रखेंगे। जो आपको मिल रहा है आप उसी में ही चुप रहेंगे, चाहे अंदर ही अंदर घुटते रहें, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और उसका मेन कॉज है बीम और साथ ही साथ है साउथ वेस्ट। कहीं पे साउथ वेस्ट में अगर क्रीक हो या साउथ वेस्ट आपका बहुत खुला है, लोअर है, तो वहां पर फियर ये एक रहेगा ही रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, और उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। टू एनहांस कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। जहां आपको लगता है आपके कॉन्फिडेंस की कमी है या आप अपने व्यूज नहीं रख पा रहे इस डर से कि ओ ये ऐसा ना ऐसा हो जाए, सबसे पहले इस फियर को बिल्कुल निकाल दीजिए। कहीं भी कुछ नहीं होगा, आपको पूरे राइट्स है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाटएवर द फीलिंग्स आर इन यू इनसाइड। स्पेशली मैं आज के शो में हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने लिसनर्स हैं, 2020 इज गोइंग, कुछ अब देखा जाए तो दिनों के 3 वीक्स का समय है, बहुत कुछ इस समय से निकला है, अच्छा बुरा कुछ भी है। खास तौर पे जहां कोविड-19 की वजह से लोग अपने डिप्रेशन में, अपने स्ट्रेस में आ गए हैं और उनकी वजह से उनमें इतनी कॉन्फिडेंस की कमी हुई है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो खास आप सबके लिए है, come out, you can win this world, only they need your will power। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस होगा आपके पास में तो आपके पास पावर भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपनी विल पावर, देन आफ्टर विल पावर यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्फिडेंस, आफ्टर कॉन्फिडेंस देयर इज ए पावर, और उसी पावर के साथ में जब मिलेंगे तो आप पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। तो करेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आपको साउथ वेस्ट में, खास कर में साउथ वेस्ट में, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको ओपन है तो कोशिश कीजिए कि घर के बाहर, जिसको हम बोलते हैं ना फोकस लाइट होती है या आप कहते हैं हैलोजन लाइट्स होती हैं, सनसेटिंग के टाइम पे वहां पे लाइट्स का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पे येलो कलर की लाइट्स को। अगर सोलर लाइट्स हैं दैट आल्सो वर्क्स, लेकिन शाम के समय वो अपने आप ही जल पड़े ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर रहे, घर के अंदर नहीं आ सके। ऐसी प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस की कमी वहां पे भी पाई जाती है जहां पर घर में शाम के समय बहुत अंधेरा रखा जाता है।
आपको लाइट करनी है, रोशनी देनी ही देनी है शाम को पूरे घर में, क्योंकि वही लाइट है जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की, एक खुशी की, एक स्ट्रेंथ लेकर आती है। तो आपको याद रखिए, सोलर या फोकस लाइट या हेलोजन लाइट का साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एरिया में जरूर करें इवनिंग टाइम में। अगर वो घर के अंदर का एरिया है तो वहां पे भी आप लाइट्स को जरूर ऑन करिए सनसेटिंग के टाइम में। साथ ही साथ में आपको कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कलर थेरेपी को भी इसको करने की कीजिए। कलर थेरेपी के साथ साथ में कलरफुल, जिसको हम क्रिस्टल, फैसिनेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, जो व्हाइट कलर, पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन, ब्लू कलर, ये भी 7 कलर्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आपको बहुत सिंपल रेमेडी करनी है लिसनर्स। आप रेड कलर का क्रिस्टल बॉल ले लीजिए। जब रेड कलर का क्रिस्टल बॉल लेंगे तो आपको अपने घर के साउथ ईस्ट एरिया में बैठना है। साउथ ईस्ट जो फायर एरिया है, चाहे वो आपका किचन का एरिया है, चाहे आपका कोई रूम है, आपको वो क्रिस्टल अपने लेफ्ट हैंड में लेके उस क्रिस्टल को राइट हैंड के साथ में ढक दीजिए, एंड यू हैव टू सिट एंड फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, नॉट इन नॉर्थ डायरेक्शन। While getting confidence, energy in yourself, you have to face towards east direction, जहां से सनलाइट की पूरी एनर्जी है। अगर आप ये रेमेडी बिटवीन 12 to 1 PM में डेली भी करते हैं, 2 times a week करते हैं, 3 times a week करते हैं, आप खुद देखिए आप में कॉन्फिडेंस की जो कमी है कैसे दूर होती है। आप में एक ऑरा बढ़ेगा, आपका ऑरा, आप में एक पावर आएगी, आपके चक्रास इनहेंस होंगे और आप अपने माइंड को स्टेबल करके अपने सही डिसीजन ले सकेंगे। तो रेड कलर का फैसिनेटेड क्रिस्टल हो, ध्यान रखें कोई प्लास्टिक वाला क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल क्रिस्टल होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑन अ रेड लेफ्ट हैंड, और उसको राइट हैंड से कवर करके फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, एंड व्हाइल सिटिंग इन साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, you have to close your eyes and just try कि जो आपका क्रिस्टल है वो आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ में इनहेंस हो रहा है। तो जब आपकी बॉडी को रेड कलर फायर की एनर्जी मिलेगी, उस क्रिस्टल के थ्रू एनर्जी मिलेगी, तो नेचुरली ही है कि आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप अपने आप को प्रॉपर वे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। कई बार कॉन्फिडेंस की, आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस की कमी से आप इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। उन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है कि अगर आप रेड कलर के क्रिस्टल बॉल की एनर्जी को एनहांस करते हैं अपनी बॉडी के साथ में, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। बहुत सिंपल टिप्स है, इसको करने के लिए, सिर्फ फॉलो करने के लिए आपको कुछ वक्त चाहिए, जो आप डेली भी अगर आप रूटीन में लें तो आपको इसका फायदा पूरा मिल सकता है। जी बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। पावर एंड कॉन्फिडेंस, पर्सनली पावर और कॉन्फिडेंस अपने आप में लाने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे इतना ध्यान दिया जाए, और जो आपने जिस तरह से समझाया, अगर उसको फॉलो किया जाए तो it can individually definitely make a huge difference in one's life, and that's what Vastu is all about. Each direction, चाहे वो east हो, west हो, north हो, southwest हो, southeast हो, northeast हो, each direction has its own importance and has its own meaning, and that's what the fascinating, very fascinating thing about Vastu is. Ladies and gentlemen, every Thursday, 3:30 to 4 p.m. Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar right here on Radio Zingi. That's where we get to learn from her. And in today's day and age, हमेशा मैं तो कहता हूँ power and confidence तो हमेशा चाहिए होता है. But when there is a time where we are going through pandemic and there is so much of sadness and remorse and everything around us, that's when we really need to be we really need to be confident and have some inner strong power within ourselves to fight with any circumstances. And that's what Rewari just explained to us about the southwest direction. Interesting, very nice. Moving on to the show, दीदी अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर टिप ऑफ द वीक हमें दे दो। ये जो आपने पावर एंड कॉन्फिडेंस से बात करी, तो उससे रिलेटेड मेरे जो मन में प्रश्न आ रहा है इज दैट
जो पढ़ाई करने में भी एक कंसंट्रेशन होना चाहिए और पढ़ाई करते वक्त भी एनर्जी भी होनी चाहिए। आपने अपनी ये पावर एंड कॉन्फिडेंस की बात में 2-4 बार आपने छोटे बच्चों का भी नाम लिया। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो टिप अगर आप आज दे सकते हो इज हाउ टू एनहांस योर कंसंट्रेशन एनर्जी इन द स्टडीज। Again, this is a rough time that we are all going through, and I think perhaps the roughest time is for the kids. Virtual study and little study here and there, and they are confused. The young minds really get confused and sensitive about that. So ये tip हम आपसे जानना चाहेंगे कि how to enhance your concentration energy in the studies. बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आज के बच्चों के ऊपर में बहुत ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मेंटली रेडी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स है, सब कुछ है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज आल्सो। तो उसके लिए अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ साथ आप बड़ों की भी है, क्योंकि जब आपको मनी से रिलेटेड होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्थ को फेस करिए, लेकिन जब स्टडीज के होता है नॉलेज, क्योंकि वो आपको ज्ञान से जरूरी है, और वो आता है ईस्ट से, जहां से आपको सनलाइट की पूरी पावर आती है, उनके लिए बहुत जरूरी है ईस्ट डायरेक्शन फेस करना। लेकिन जब आप ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो आप कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिए। एक तो ये कि जिस जगह पे आप बैठे हैं उस रूम में पर्टिकुलर में ईस्ट की डायरेक्शन में कहीं पे भी ब्लू कलर का पेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, अगर आप स्टडीज की तरफ कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो ईस्ट वॉल या तो सी ग्रीन कलर की कह सकते हैं या येलो कलर की आप वॉल को पेंट कीजिए, ताकि आप प्रॉपरली उस पर कंसंट्रेट कर सकें स्टडीज के ऊपर। नेक्स्ट, कभी भी मेटल का टेबल नहीं होना चाहिए। मेटल्स के टेबल से जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिपल्शन की तरह आंसर करती है, जिसकी वजह से आप बैठ के जगह के पढ़ेंगे नहीं, आप बार बार उठ जाएंगे। बच्चों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि वाइल स्टडिंग वो वुडन टेबल लें और वुडन ही चेयर लें, क्योंकि अगर वो रिवॉल्विंग चेयर लेते हैं तो भी वो कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, उनकी बॉडी घूमती रहेगी। कंसंट्रेशन मीन्स कि यू हैव टू फोकस, आपका एक गोल होना चाहिए, आपको फोकस करना है, आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, चाहे आप 10 मिनट करें चाहे आप 10 घंटे करें, बट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। उसके लिए कभी भी हो कोशिश यही करिए, ब्लैक कलर रेड कलर को अवॉइड करिए टेबल के ऊपर में, मेटल के टेबल को अवॉइड करिए, आप वुडन टेबल लीजिए और वुडन सॉलिड चेयर भी जरूर लीजिए। जब वुडन सॉलिड चेयर का आप लेते हैं तो वो आपको स्टेबल करती है आपके माइंड को, क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आप कभी भी देखिए कि आप पाँव जो है जमीन पे रखते हैं, सर्दी का मौसम है तो आपको एकदम एक फीलिंग होती है, ठंडक सी लगती है कि वो मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं, क्यों? आपकी बॉडी फील करती है। उसी तरह से अगर आप किसी मेटल टेबल पे बैठेंगे तो आपकी बॉडी मैग्नेटिक एनर्जी, और जब उसके साथ में रिपल्शन होगी आप प्रॉपर कंसंट्रेशन ही करेंगे, आपको हर 10 मिनट बाद 15 मिनट के बाद में आप उठेंगे, एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ आप दूसरे को लेना पूरे शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ना मेंटली ना फिजिकली आप उसके साथ में नहीं चल रहे जो एनर्जी लेवल आपको चाहिए। तो कंसंट्रेट करने के लिए व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टेबल लीजिए, साथ में सॉलिड वुडन चेयर को लीजिए। ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर कभी भी उस रूम में नहीं होना चाहिए जहां आप स्टडी करते हैं। बच्चों को खासकर मैं ये जरूर कहती हूँ कि वाइल स्टडिंग दे शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ऑन देयर टेबल। अगर उनको भूख लगी है तो वो जाके किचन में जा सकते हैं, या अगर स्कूल के आवर्स में स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल के आवर्स के बाद में भी वो जा सकते हैं। इफ दे वांट टू ड्रिंक वाटर, आप अपनी टेबल से अलग होके लीजिए, क्योंकि वो आपकी सरस्वती है, वहां से आपको ज्ञान मिल रहा है। तो अगर आप वहीं पे जूठे बर्तन रखेंगे या जूठे हाथों से खाएंगे या काम करेंगे तो वो आप कभी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि येलो कलर की आपको करना चाहिए, ग्रीन कलर एक बहुत जरूरी है। जहां आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उन सब बच्चों के लिए है कि अगर आप सर की तरफ, जहां बच्चे सोते हैं, जहां उनका बेड होता है, उनके सर की तरफ अगर आप पेरेंट्स से रिलेटेड पेंटिंग जरूर लगाएं, पिक्चर जरूर लगाएं, यानी कि पेरेंट्स हो और साथ में छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, ये जो भी आप उनकी लगाइए, ताकि आप उनकी ब्लेसिंग्स को ले सकें और फोकस कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है आपको खाने के लिए, बहुत डिपेंड करता है। इफ यू ईट एनी स्पाइसी, आप देखिए आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे।
कभी भी नहीं। कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है आप कम मिर्ची खाइए, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है तब आपको बहुत है हेल्प करेगा, दैट इज कुकम्बर. Cucumber and mint is that thing which always increases energy. लेकिन कंसंट्रेशन वालों के लिए खाने के समय में आंवला, जिसको कहते थे कि हमारे किसी समय में कि आंवला का मुरब्बा होता है, बट इफ दे ईट 2 or 3 times a week अगर आंवला खाते हैं, डेफिनेटली वो प्रॉपर कंसंट्रेशन कर पाएंगे अपनी स्टडीज के अंदर. आंवला के तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स भी है आंवला खाने से, तबीयत के लिए भी बहुत अच्छा है। बट ये जो सब बातें आपने समझाई, या हाउ टू एनहांस कंसंट्रेशन एनर्जी इन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब ठीक था। लेकिन मेरे ख्याल से एक दो चीज़ ऐसी है जो आपने कहा कि टेबल पे खाने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के लिए ये शायद बच्चों के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फूड एंड देयर स्टडी दे गो टुगेदर, दे नीड टू हैव समथिंग टू मर्ज, Sanjeev, I do understand. उसके लिए best है when they are reading any book or any novel or any book they are reading, then they can go and munch. There is no problem. I'm not going for any strict rule. But while studying their books, which is related to their schools and college, and they have to appear for exam, particular on that time, they should not eat on table. जी बिल्कुल, on their study table. I mean, it's a study table. बात तो बिल्कुल सही है, 16 आने सही है, and let's just hope कि parents will tell their kids to follow this suggestion, and hopefully it will make a difference. Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar right now on Radio Zindagi. worldofdivinevastu.com is the website that you should visit, worldofdivinevastu.com. And as I mentioned, Dr. Reva Kumar is definitely reachable for any consultation over the phone, over Zoom, Skype, anything's possible for home or for business. And she can be reached at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. आज जो हमने बात करी वो how to get power and the confidence by following वास्तु principles, and we came to know southwest direction आपके घर में जो है extremely important, और उसको कैसे enhance किया जाए, वहाँ से positive energy in order to get power and confidence within yourself to live life. These days obviously you know how tough it is, but that's why you need to have more power and more confidence in you. And then उसके बाद दीदी ने हम सबको टिप बताई कि how to enhance concentration energy in the studies. So that was the show all about. Next Thursday दीदी आप कोई स्पेशल टॉपिक पे तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट थर्सडे? जी हाँ, नेक्स्ट बिल्कुल स्पेशल टॉपिक है, और खास तौर पे ये हमारे कपल्स के लिए है, चाहे यंग कपल्स हैं, ओल्ड कपल्स हैं, फॉर एवरीवन दैट इज अ स्पेशल टॉपिक है। और मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स जरूर सुने, क्योंकि नेक्स्ट वीक के साथ में देखा जाए टिल 31 दिसंबर तक हम लोग स्पेशल लेकर आ रहे हैं what we are getting in 2021. 2020 तो हो गया, अब 2021 की तरफ जरूर चलेंगे जहां से हमको ग्रो करना है। Once again, I would like to convey my message to each and every viewers: stay healthy, be safe, be positive. कहीं पे अगर आपको कहीं लगता है कि आप डिप्रेशन से निकल रहे हैं, कहीं आप कोई स्ट्रेस फील रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू डायल माय नंबर 510-868-3338. I am always there to take care. ये समय सिर्फ आप पे भी नहीं है, हमारे पे भी है। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अपने आप को आप अकेला ना समझे, हम सब आपके साथ हैं। वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। इसी से इजाजत लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। फिर वंस अगेन एंजॉय कीजिए, ये जिंदगी जीवन बहुत खूबसूरत है। जैसे पिछला वक्त गया, अगर अच्छा नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, और listeners and viewers, the entire conversation today is the Divine Vastu Talk Show, and every week you can watch it live on Facebook page. In case if you missed any of it, always visit Facebook page, Radio Zindagi Tri-State Facebook page, and get all the things that you really need to know. Once again, the number you should note down for Dr. Reva Kumar is 510-868-3338. worldofdivinevastu.com is her website. Didi, until we meet and talk again next Thursday, same place, same time, right here on Radio Zindagi, you do take care of yourself, stay safe, and continue to spread message of Vastu, which is very, very helpful to all of us.
Thank you, Sanjeev. Thank you, viewers. Thank you, listeners. Jai Mata Di. Jai Mata Di Didi. Thank you so very much. With that note, we come to the end of this Divine Vastu Talk Show with Dr. Riva Kumara here on Radio Zindagi. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.